XYZ Limited manufacture 3 products P1, P2, P3. These are made in 3 production department D1, D2, D3 from 4 material M1, M2, M3, M4. From following information, prepare production and purchase budget for the year. Predetermined cost details. Material M1, M2, M3, M4 used in department D1, D2, D2, D3. मतलब D2 में 2 मटेरियल यूज होते हैं M2 एंड M3 यहाँ एंड कॉस्ट पर मटेरियल यूनिट 0.5, 0.2, 0.25, 0.15 प्रोडक्ट्स P1, P2, P3 और जो मटेरियल जो लगता है वो कितना है यूनिट्स पर प्रोडक्ट P2 के लिए P1 के लिए कुछ भी नहीं P2 के लिए 1 P3 के लिए 2 देन M2 P1 के लिए 1 नथिंग फॉर P2 बट P3 के लिए 2 M3 P1 2 P2 1 P3 nil and M4 this material required for P1 2 P2 2 and P3 1 budgeted details in rupees sales for the year rupees in 1000 2,60,000 5,80,000 and 4,50,000 sales price is 5 10 6 now in thousands of products stock at the beginning of the year 5 10 15 these figures are in thousands and at the beginning of the year stock at the beginning of the year 5 10 15 and then at the close of the year चाहिए वहां पर at the end of the year चाहिए दोनों beginning में होंगे फिर तो हाइट हो गई it is at the end of the year 10 15 30 in thousands raw material stock M1 M2 M3 M4 at the beginning of the year in 1000 30 40 10 60 and at the end of the year 40 30 20 60 what you have to do from the following information prepare production and purchase budget ठीक है तो ये जो हमने सबसे पहले किया था ना ACB MCB DP वो टाइप वाला क्वेश्चन है ठीक है हम लोग करेंगे इसे नहीं होमवर्क नहीं वेल आके मुझको करना पड़ेगा ठीक see what is given सिर्फ प्रोडक्शन एंड परचेस बजट है प्लीज परचेस एंड प्रोडक्शन बजट है यहाँ पर कोई आपको फिक्स्ड ओवरहेड एंड देन प्रॉफिट टारगेट एंड वर्कर्स वगैरह वो कुछ नहीं है सो वेरी फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज दी प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी होगी वी आर हैविंग हाउ मच प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स है P1 P2 P3 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास है अब देखिए इसकी सेल्स क्वांटिटी कितनी है P1 P2 P3 P1 का सेल्स इन 1000 आपको दिया हुआ है 2,60,000 और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 5 सो 2,60,000 by 5 52,000 इज द सेल्स क्वांटिटी तो प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए क्या करना होगा सेल्स क्वांटिटी 52,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक उसका 10,000 सो 252 प्लस 10,000 2,62,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग कितना है 5,000 so what is the quantity to be produced 57,000 got it चलो बनाइए करेंगे आप उसको घर में आएगा करते हैं बिल्कुल सिंपल सो दिस इज फॉर होमवर्क ठीक है बस जैसा P1 के लिए क्या वैसा P2 P3 फिर जो प्रोडक्शन क्वांटिटी आएगी उस बेसिस पर फाइंड आउट करो कि हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन फिर वो कंजम्पशन की क्वांटिटी निकालो और फिर उसमें क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्वांटिटी ऐड करके ओपनिंग रॉ मटेरियल क्वांटिटी लेस कर दो सो यू गेट दी component or that raw material purchase budget हमको find out करना है I hope you can do this so this number 7 is for homework ठीक है come to the next number 8 number 8
You are required from the data given below to prepare next year's budget for production and purchase. The standard cost data are as under. दो प्रोडक्ट्स हैं AYE and BEE. AB. Okay. Direct material X 24 kg at rupees 2 per kg, rupees 48, and 30 kg at rupees 2, rupees 60. Y के लिए 10 kg at rupees 550 and that 8 kg at rupees 540. Z 5 kg at rupees 630 and 10 kg at rupees 660. So दो प्रोडक्ट्स हैं A and B, उसके लिए तीन रॉ मटेरियल लगते हैं X, Y, Z. इसे कितनी क्वांटिटी लगती है? What is the rate that is given to you? Direct wages, unskilled 10 hours at rupees 330 and 5 hours at rupees 315. Skilled 6 hours at rupees 530 and 5 hours at rupees 525. So दोनों प्रोडक्ट के लगने वाले टाइप ऑफ वर्कर्स, स्किल्ड, अनस्किल्ड, कितने आवर्स, कितना रेट आपको दिया है. Production overhead is absorbed on the basis of direct labor hours, while other overhead is recovered on the basis of 20% of production cost. Profit is calculated 20% of sales price. Budgeted details for the year are as under. Material X, Y, Z. Stock at standard price 1st January rupees 60,000, 1,25,000, 72,000, and 31st December 70,000, 1,35,000 and 75,000. देखिए X का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1st जनवरी रुपीज 60,000. आप देखिए ऊपर के स्टेटमेंट में X की परचेज प्राइस क्या है? It is rupees 2 per kg. इसका मतलब है 60,000 is the total cost divided by 2, 30,000. ये क्या है? क्वांटिटी. 30,000 क्वांटिटी. सिमिलरली Y का ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कॉस्ट 1,25,000, उसका रेट है ₹5. इसका मतलब वो क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 25,000. समझ में आ गया ना? इस बार आपको कॉस्ट दी है लेकिन आपको पर केजी कॉस्ट भी देके रखी है. सो यू कैन फाइंड आउट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्वांटिटी. देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 9 लाख एंड लेबर आवर्स है 75,000. नाउ फॉर A and B, finished goods stock at production cost, opening stock 1,52,000, 2,56,000, closing stock 1,90,000 and 3,52,000. Sales and standard sale price 13,63,000 and 15,36,000. सेल्स प्राइस निकाल सकते हो क्या? सेल्स वैल्यू आपको दी है 13,63,000. उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद दिया है देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्सॉर्ब on the basis of direct labor hours. Production overhead is absorbed on the basis of direct labor hours, while other overhead is recovered on the basis of 20% of production cost. 20% of production cost. Profit is calculated at 20% of sales price. Budgeted details for the year are as under. सबसे पहले तो प्रॉब्लम के अंदर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिलेगी, तब जाके आपको सेल्स क्वांटिटी पर प्रोडक्ट मिलेगा, और सेल्स क्वांटिटी मिलेगी तो जाके आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी फाइंड आउट कर जाएगी, और प्रोडक्शन क्वांटिटी मिलेगी तो फिर आपको निकाल जाएगा हाउ मच रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम, और कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना तब जाके समझेगा हाउ मच रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड आफ्टर ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स. सो योर गेम विल स्टार्ट फ्रॉम दी calculation of selling price that you have to find out. क्या दी selling price के लिए? Production overhead is absorbed on the basis of direct labor hours, while other overhead is recovered on the basis of 20% of production cost. ठीक है? And profit is 20% of sales price, मतलब 25% on cost. So first find out what is the total cost. So बनाइए
स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, एक्चुअल वर्चुअल दोनों लिखेंगे. स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, statement of selling price, particulars A, B, you write down material cost, write down under that X 48 60, A के लिए 48, B के लिए 60, Y 50 40, Z 30 60. तो प्रॉब्लम में दिया डायरेक्टली आपको. देन वेजेस, skilled, unskilled 30 15, skilled 30 25. Yeah, therefore prime cost कितने हैं? 188 एंड 200 ना. बस वो मटेरियल लेबर आपको डायरेक्टली दिया ही है, बस उसकी टोटल हमने हमारे स्टाइल में लिखा है, बाकी कुछ नहीं. इट्स 188 एंड 200. ये हो गई प्राइम कॉस्ट. देन ऐड प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब ही फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऐड प्रोडक्शन ओवरहेड्स. कितने प्रोडक्शन ओवरहेड? प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स. अब देखिए नीचे आपको दिया हुआ है एक नीचे का जो स्टेटमेंट है उसमें स्टॉक, उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड 9 लाख एंड लेबर आवर्स कितने हैं? 75,000. सो व्हाट इज द प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट? 9 lakh divided by 75,000, rupees 12. Is it? It is rupees 12. Production overhead is 9 lakh and labor hours is 75,000. इसका मतलब your production overhead rate is rupees, recovery rate is rupees 12. अब आप देखिए A के लिए कितने hours work हुआ? How many hours? देखिए unskilled workers are working for 10 hours and skilled workers working for 6 hours. So कुल मिलाकर 16 hours. Is it? तो 16 hours into rupees 12. Write down. वहां लिख के रखिए आप, ब्रैकेट में लिख के रखिए 16 hours into 9 lakh by 75,000. 9 lakh divided by 75,000. क्योंकि वो 12 आपने समझा कि नहीं, आपको कहां से आया था. So your overhead is 9 lakh divided by 75,000, मतलब वो 12 है आपका overhead recovery rate into 16. 192 A के लिए and same thing for B, 5 plus 5, that is 10 hours. So 10 into 9 lakh by 75,000, that is 120. So finally I can say your production overhead for A 192 and for B it is 120. 12 रुपए ओवरहेड रिकवरी रेट था. ए के लिए लगने वाले टोटल आवर्स स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मिलाकर 16 आवर्स इंटू रुपीज 12 एंड बी के लिए 10 आवर्स इंटू 12 120. देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट, सॉरी ये होगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट. देन ऐड कितने फैक्ट्री कॉस्ट जरा बताएंगे? 380 and 320 होगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट. एड अदर ओवरहेड्स. नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर
प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखिए वो अदर ओवरहेड्स है कितने हमारे, वो कितने हमारे, इट इज 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा उसका 20% है, वो 380 आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है, डोंट डू 380 का 20%, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 20%। मतलब 380 का कितना, 25%। आई होप दिस इज क्लियर। प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% है, तो फैक्ट्री कॉस्ट में आपको ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो आएगी वो प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका मतलब ये प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 100 है तो ये ओवरहेड्स 20, इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट इज 80, राइट। सो फैक्ट्री कॉस्ट का 25% आपको लेना पड़ेगा। सो ऐड कितना है फिर वो ओवरहेड्स आपके, 25% ऑफ 380 is 95 and 25% of 320 80. Therefore production cost 475 and 400, 475 and 400. Add profit, add profit कितना है प्रॉफिट, 20% ऑफ सेल्स मतलब 25% ऑफ कॉस्ट। सो 475 का 25%, जो आता है वही ले लो, देखेंगे फिर आगे। फ्रैक्शन में आता है ना कुछ, 118.75, 118.75 and 100. Therefore selling price I think 593.75 na, 593.75 and 500, is it? Then sales 13,63,000 and 15,36,000. Therefore sales quantity 13,63,000 divided by 593.75 कितना, 2,296, 3,072. Is it? क्लियर हो गया? तो ये मिल गई आपको क्या, सेल्स क्वांटिटी, ठीक है। एक बार आपको सेल्स क्वांटिटी मिल गई, तो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू फाइंड आउट, देखिए स्टार्टिंग में दिया आपको, यू आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो टू प्रिपेयर नेक्स्ट ईयर्स बजट फॉर प्रोडक्शन एंड परचेस। नो फाइंड आउट प्रोडक्शन बजट। तो सेल्स क्वांटिटी आपको मिल चुकी है, उसमें आप क्या करेंगे, ऐड कोई, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट रह गया ना हमारा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है हमारी, 475 एंड 400, ओके ठीक है। चलिए आगे,
Statement of production budget. Yeah, write down sales quantity. Sales quantity. आपने 3 कॉलम किए होंगे, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, देन सेल्स क्वांटिटी लिखिए। आपकी जो सेल्स क्वांटिटी है वो कितनी हमारी सेल्स क्वांटिटी 2296 एंड 3072, ठीक है। एड ओपनिंग स्टॉक, सॉरी एड क्लोजिंग स्टॉक, एड क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आपको दी है 1,90,000, सो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 475 ना प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 400, 1,90,000 डिवाइड बाय 475 इज 400, और ये जो 3,52,000 है जेड का, सॉरी जेड का नहीं बी का, 3,52,000 डिवाइडेड बाय 400 ना, सो मच 880 जो भी टोटल है उसमें से करो लेस ओपनिंग स्टॉक, लेस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज 1,52,000 डिवाइडेड बाय 475 कितना 320, एंड 2,56,000 डिवाइडेड बाय 400 640। Therefore, production quantity कितना 2,376 and 3,312 देखेंगे वर्चुअल में एक बार सब जन चेक कर ले। इट इज सेल्स क्वांटिटी, देखो क्या थी हमारी सेल्स क्वांटिटी, इट वाज 2,296 एंड 3,072, एड क्लोजिंग स्टॉक 400 and 880, so total is 2,696 and 3,952, and less opening stock, it is 320 and 640, so production quantity is 2,376 and 3,312। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी जो हमने फाइंड आउट की है उसके लिए आपको प्रोडक्शन कॉस्ट दी है प्रॉब्लम में 1,52,000 1,90,000, बस इस कॉस्ट को आपको डिवाइड करना है बाय प्रोडक्शन कॉस्ट है, दैट इज 475 से ए के लिए, एंड बी के लिए डिवाइड करना है बाय ₹400 से। गॉट इट? बस एक बार आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी मिल गई, सो यू कैन फाइंड आउट द मटेरियल कंजम्पशन। फिर मटेरियल कंजम्पशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्ट करके मटेरियल परचेस। बराबर है? प्रोसीड, फाइंड आउट। Do it everyone, actual virtual दोनों।
स्टेटमेंट ऑफ परचेज बजट करना पड़ेगा आपको, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। स्टेटमेंट ऑफ परचेज बजट, particulars x, y, z। या पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे आप सबसे पहले? रिक्वायर्ड फॉर अंडर दैट ए। अब ए की जो अभी हमने प्रोडक्शन क्वांटिटी फाइंड आउट की थी, उस प्रोडक्शन क्वांटिटी को एक्स कितना चाहिए, हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या थी ए की? ए के लिए सचिन, ए के लिए कितनी? 2376 एंड बी के लिए 3312। सो हियर फिर देखिए कितना आएगा, 2376 इंटू एक्स कितना चाहिए? 24 केजी। हाँ कीजिए ना, एक्स के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना, वाई के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो एंड जेड के लिए 5 एंड बी के लिए एक्स को मल्टीप्लाई करो 30 से, वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से एंड जेड को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। Is it? And then take the total of x so total consumption of x कितना है? 1,56,384, that is 2,300 into 24 and 3,312 into 30, total 156,384, then 50,256 and 45,000। इसमें आप करेंगे ऐड क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए एक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 70,000 रुपीज है और उसकी परचेज प्राइस 2 रुपए है, तो 70,000 डिवाइड बाय 2 35,000 इज इट। और उसकी कॉस्ट दी आपको, टोटल कॉस्ट, उसकी परचेज कॉस्ट 2 रुपए, तो 70,000 बाय 2 35,000। वाई के लिए 1,35,000 डिवाइडेड बाय 5 27,000 एंड जेड के लिए 75,000 बाय 6 12,500। ऐड कर दीजिए 35,000 27,000 एंड 12,500 ऐड कर दिया। सिमिलरली लेस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक को लेस कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक जो है इट इज 60,000 एक्स के लिए, डिवाइड बाय 2 करेंगे इट विल बी 30,000। वाई के लिए 1,25,000 बाय 5 25,000 एंड जेड के लिए 72,000 बाय 6 इज 12,000। सो लेस करते वक्त एक्स के लिए 30,000, वाई के लिए 25,000 एंड जेड के लिए 12,000।
सो आई थिंक एक्स के लिए फाइनल आंसर 1,61,384 बराबर है. Y के लिए 52,256 एंड Z के लिए 45,500. Is it? Write down purchase price. आगे लिख दीजिए purchase price. Z के लिए 45,500 ना. फिर से बता दूं मैं, X के लिए कितना 1,61,384, Y के लिए 52,256 एंड Z के लिए 45,500. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत सिंपल, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग नेट डिफरेंस, वो नेट क्वांटिटी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी. आंसर सेम आना चाहिए बस. नेक्स्ट परचेज प्राइस. परचेज प्राइस कितनी है 256. Therefore purchase amount. Purchase price per kg is given in the problem itself 256. Therefore total purchase so X के लिए purchase amount purchase amount X के लिए कितना 3,22,768. Y 60 1,280 and Z 73,000. This is your final. Got it? Okay. Then on the next page, considering fixed budget and flexible budget. अभी हम लोग functional budgets कर रहे थे. अब तक हमने क्या production budget, sales budget, then your manpower budget. ये हमारा functional budgets थे. Considering fixed budget and flexible budget. Fixed budget and flexible budget. Fine. That we'll discuss tomorrow.